एवरीबॉडी नमस्ते, मैं हूं टैरो जीनी एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू योर वीकली गाइडेंस। तो हम देखेंगे ये वाला वीक कौन सी एनर्जीज हमारे लिए लेके आ रहा है सो दैट वी कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द वीक अहेड। तो चलिए देखते हैं, हम अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मांगते हैं। God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us for the week, this week. What is that we can know? Thank you so very much. We have the pile number 1. We have the pile number 2. And we have the pile number 3. ये रहा आपका रेड जास्पर, ये है हमारा क्लियर कॉज और ये है ग्रीन एवेंचुरिन। सो हियर आर योर कार्ड्स, लेट्स सी। यस, take all the time you need, guys, to choose your pile, and let's get started with pile number 1 with their guidance, and I will see you in your guidance at your timestamp. See you there. All right, so all the people who chose pile number 1, क्या बोला जा रहा है आपको? Give with gratitude and grace. All right, give with gratitude and grace, and this is what? This is our turkey spirit. चलिए साथ में देखते हैं टर्की स्पिरिट आपको और हम सबको क्या बताने के लिए आई है। टर्की स्पिरिट्स मैसेज फॉर यू इज दैट यू ऑलवेज हैव द पोटेंशियल फॉर मैनिफेस्टिंग अ रिच रियलिटी। फॉर द टर्की स्पिरिट रिप्रेजेंट्स जेनरोसिटी एंड सेलिब्रेशन ऑफ अबंडेंस थ्रू गिविंग टू अदर्स। वाओ, आपको क्या बोला जा रहा है? यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अबंडेंस गाइस by bringing value to people. यानी कि if you have some gifts, share it with others and in turn add values, and when you add values you attract more people and you increase your abundance, you increase your circle. Wow, amazing. Abundance through adding value, receiving through giving. Wow, what a message coming from a turkey spirit, no? Give freely without expectation and you shall receive. यानी कि if you feel that the flow is tight at the moment, मनी का फ्लो कम है, दोस्त की कमी है, तो जो भी चीज आप अपने लिए चाहते हो ना, कि आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प करे तो आप दूसरों को हेल्प करो। यानी कि जो भी चीज आप अपने लिए मिस कर रहे हैं, उस चीज की कमी है, उस चीज को आप दूसरों को देना स्टार्ट करिए। लव की कमी फील करते हो, कोई सपोर्ट फील नहीं करता है, दूसरों को सपोर्ट करो। लव की कमी लगती है, दूसरों को कोई लव करो, एंड यू विल सी कि हाउ व्हाट यू गिव इनटू द यूनिवर्स, थ्रो इनटू द यूनिवर्स ना, कीप्स कमिंग बैक टू यू multiplied 3 times at least, because whenever you say something, echo comes 3 times back. तो जो भी जिस चीज की भी कमी है ना, उसको देना स्टार्ट करो। पैसे की कमी है, चलो हम पैसे से तो किसी को हेल्प नहीं कर सकते, बट छोटा सा कुछ हेल्प हम जरूर कभी कर सकते हैं। चलो हम पैसे से हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम फिजिकल लेवल पे किसी को हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए एक दिल से प्रेयर कर सकते हैं। एंड दिस टर्की स्पिरिट इज ऑल अबाउट बिकमिंग मोर बाय गिविंग, by start giving. I love the message. Start giving freely without expectation and you shall receive. For the manifestation of abundance is happening right now for you. इस week कुछ दान करिए, पुण्य करिए, है ना? Create some good karmas. Align with it by sharing your good fortune with others. Whether you give money, this is exactly what I told you, whether you give money, loving guidance, the gift of listening, or kindness in any form. At times somebody is depressed, sad, you can just listen to that person. And you know what, I read something very interesting somewhere, that हम लोग सबको लगता है कि we all have a big purpose, and we actually we all have purpose, we all have big purpose, but the way we 3D people see purpose is कि नहीं, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसके बहुत सारे we see, like, of course Sadhguru and all, they are big people and they add so much of value, like they are big people with big missions, but हम सब छोटे छोटे लोगों का भी छोटा छोटा मिशन है, which is fine. And
coming back to what I read, it was like sometimes your purpose is just being this loving person, listening to that sad person. If you listen to that sad person, you fulfilled your purpose. तो purpose ऐसा नहीं है कि it has to be very grandeur. Simple things are equally important. वो चीज़ बोल रही हूँ मैं. Immerse yourself in the flow of generous abundance, being a channel for Turkey spirit and the desire of the spirit to see all being experience the blessing of plenty. Give with gratitude and grace from a wellspring of love and compassion. यानी कि gratitude से help करिए और grace से help करिए. From a place of love and compassion help करिए, knowing that the spirit will respond by giving you all that you need in this moment and all the moments to come. Wow, what a beautiful message for all the pile number ones. I'm so happy to read the message for you from the the book, because I also get to learn so much from that. Beautiful gift to receive, all the pile number one. चलिए देखते हैं डिटेल्स में और हमको क्या पता चलता है आपके आने वाले वीक के बारे में, प्यारे दोस्तों. Thank you dear angels for the guidance coming for all the pile number one. चलो ये आ गया आपका 7 of cups. काफी विचार में हो, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. यू आर लाइक थिंकिंग. यू हैव ऑप्शंस. शुड आई गो फॉर दिस? बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है. क्या मैं यहाँ जाऊंगा? विल इट बी वर्थ इट? जैसे कि हमें बोला गया ना कि अगर ये 7 लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सबको हेल्प कर सकते हो. यहाँ पे यू आर मोर लाइक प्रॉबेबली लाइक कौन सी चीज बेटर रहेगी मेरे लिए, क्या बेटर रहेगा. बट हाईएस्ट गुड में ही सबका गुड होता है. चलिए आगे बढ़ते जाते हैं. यस, हाईएस्ट गुड में ही सबका गुड होगा. आप जो भी चीज हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पे यू आर इन द सिलेक्शन मोड. क्या करना चाहिए, क्या मुझे इतना टाइम देना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए. जब आप दूसरों को देंगे तभी आपको भी मिलेगा. So this is what you should keep in mind when you are making these selections. तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा टोटल. यहाँ पे जो आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना, you will do decision making on certain criterias. Turkey spirit here has already come and told you जो भी decision making इस week करो ना, see to it that you are not being selfish. See to it that you are being generous, because तुम जितना दोगे तुमको उतना ज्यादा मिलेगा. ये बोल रहा है. Yes, and this is what it is, total balance, the way you decide. यहाँ का बैलेंस डिपेंड करता है यहाँ के डिसीजन मेकिंग पे. क्या हम यहाँ पे सेल्फिश होके डिसाइड कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कृपण होके डिसाइड कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे लव एंड कंपैशन से डिसाइड कर रहे हैं. व्हाट आर वी, व्हाट इज द इंटेंशन, एंड देन द बैलेंस कम्स इन. ब्यूटिफुल इंडीड. देखिए, अगर आप यहाँ पे उस तरह से, यहाँ पे इस वीक यू विल हैव लॉट ऑफ चॉइसेस टू डू, बट try to be generous to everybody, try to give and add value to people around, environment around. दूसरों को सर्वोपरि रखिए इस हफ्ते. और आप जब देखेंगे कि आप दूसरों को सर्वोपरि करते हैं, आप अपने आप को थोड़ा पीछे करते हैं, तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के सब लोगों के लिए टोटल बैलेंस क्रिएट करते हैं. एंड इन दिस वे, जो भी आप कमी अपने लाइफ में फील कर रहे हो ना, कि किसी चीज का फ्लो ठीक नहीं है, चाहे तो वो रिलेशनशिप का फ्लो ठीक नहीं है, चाहे तो मनी का फ्लो टाइट है, जो भी चीज है, आप देखोगे कि आप वहां से धीरे 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 करके क्या करते हो, निकल जाते हो. इवन tortoise is all about small things, small progress and all. नहीं हो रहा है, जब small progresses मिल रहा है तो start giving, and you see that you will slowly but surely start moving from difficult times. Back of the deck में देखेंगे 9 of Wands. You have been on this for a long time is also what I am picking up. So start giving generously. चलिए हम आपके लिए यहाँ से एक कार्ड उठा लेते हैं. मैसेज बहुत ही क्लियर है. इस वीक अगर दूसरों को हेल्प करने का मौका मिले तो उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इफ यू हेल्प 1 person, 3 people, you get back 3 times. Accept what is dying. Yeah. Wow. Accept what is dying. यहाँ पे इसी चीज का सोच विचार चल रहा है कि क्या करना चाहिए. और आप actually some kind of decision making that you will make, some kind of confusion that you are going through, there are a lot of suggestions coming in for that. ये confusion में आप surrounded हो, decision making करना है,
एंड डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पॉइंटर्स मिल रहा है स्पिरिट गाइड से। एक तो जनरस होकर डिसीजन लेना, सेल्फिश होकर डिसीजन नहीं लेना कि ये आगे मुझे क्या फायदा है, मुझे तो कोई मिलेगा। दूसरी चीज है कि ऐसा किसी चीज को छोड़ के भाग मत जाना कि चलो इसका तो कोई फायदा नहीं है करने का, क्या ही इसको हम टेक केयर करके करेंगे। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इसको तो करके कोई फायदा नहीं है। डू इट फॉर दैट एंड यू विल गेट बैक। ये मैसेज। एंड बैक ऑफ द डेक में लव योर सेल्फ भी है, तो आई विल डेफिनेटली टेक दिस। All right, guys. This Nine of Wands is telling that you have been a wounded warrior, waited way too long, and you are considering something here. But yes, don't forget to love yourself either. Because when you love yourself, now you will be able to love others and give to others. Pile number 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है? लो सेल्फ एस्टीम। All right, okay, 1 second. Let me read this. You deserve success. हमने बात की ना यहाँ पे, टर्की स्पिरिट ने बताया ना कि हमारे लाइफ में कुछ टाइट सा है, चीज़ें फ्लो नहीं हो रही है, चाहे तो मनी का फ्लो हो, सपोर्ट का फ्लो हो, रिलेशनशिप में हो, लव हो, किसी चीज़ की कमी है और हमको लगता है कि हम शायद डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन बात वो नहीं है। बात क्या है कि हमको वहाँ पे थोड़ी सी जो एनर्जी स्टक हो गई है, डेंस हो गई है ना, उसमें मोबिलिटी लाना है। और मोबिलिटी कैसे लाएंगे आप? टर्की स्पिरिट ने पूरा का पूरा प्लानिंग आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए, यू डिजर्व सक्सेस, लव, अबंडेंस। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो आप डिजर्व नहीं करते हैं, बट उसको लाने का तरीका आपको टर्की स्पिरिट ने बता दिया। बैलेंस लाने का तरीका टर्की स्पिरिट ने बता दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास नहीं होता है तो हम 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाके जो हमारे पास होता है उसको हम जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कमी है। लेकिन वही चीज कौन सी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है यूनिवर्स में? 5 ऑफ पेंटिकल्स की। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात की ना, जब हमको लगता है कि कोई चीज हमारी लाइफ में बहुत कम है तो हम उसको पकड़ लेते हैं जोर से। और ये वाला एनर्जी कौन सी एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है यूनिवर्स में? कमी की। और दूसरा वाला कार्ड कौन सा होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद? 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि एक कमी की एनर्जी है। इट्स अबैंडनमेंट, इट्स फीलिंग अनसपोर्टेड एंड orphaned, so that kind of a thing. Set an intention to identify and release any remnant low self-esteem. लो सेल्फ एस्टीम से आके, क्योंकि हमारे पास कमी है, हमारे पास लव का कमी है, पैसे का कमी है, सक्सेस का कमी है, तो हम दूसरों को भी नहीं देंगे, तो हम अपनी ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। हमारे पास जितनी कमी है ना, हमारे पास जो भी चीज़ है हम उसको प्यार से देंगे, प्यार से देंगे। यू आर रियली कंसिडरिंग, क्योंकि यू हैव बीन पुश्ड टू द कॉर्नर्स, यू आर रियली कंसिडरिंग क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे टर्की स्पिरिट बता रही है कैसे करना है, अबंडेंस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमको 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को रिलीज करके 5 ऑफ पेंटिकल्स में हमको आगे नहीं बढ़ना है। जब हम रिलीज करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स तभी हम 5 में नहीं पहुंचेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स में, अदरवाइज वी विल रीच देयर। तो ब्रिंग बैलेंस, एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, है ना, जो चीज कमी है उसको एक्सेप्ट करो एंड फिर वहां से देना स्टार्ट करो, एंड यू सी कि कैसे आपके भी घर भर जाते हैं। विच इज अ वेरी डीप एंड मैसेज, क्योंकि देखो वही है ना, लव योर सेल्फ। कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं है। डोंट ऑपरेट फ्रॉम द स्कैसिटी माइंडसेट, दैट इज व्हाट इट इज। अ ब्यूटिफुल मैसेज, आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। यहाँ पे देखिए कुछ फादर हीलिंग की जरूरत है। योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इशू टू दी हेवन, है ना। तो कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक हो सकता है। आई एम श्योर यू नो कि व्हेन आवर अबंडेंस इज इम्पैक्टेड, मनी इज इम्पैक्टेड, वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ resentment in our heart. We are not forgiving our parents maybe, और वहां पे चीजें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर हीलिंग भी है, बट पॉजिटिव एनर्जी, हाउ विल यू इनिशिएट दिस पॉजिटिव एनर्जी? जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एनर्जी स्टक है, कैसे उसको फ्लो में लाना है? टर्की स्पिरिट ने बड़े मजे से बता दिया है। जिस चीज की कमी है ना वही देना स्टार्ट करो, छोटा छोटा दे दो, जो दे सकते हो। तो sometimes lending a listening ear, giving your time to anybody is the biggest thing you can give to anybody. It doesn't always have to be money or cash, है ना। Surround yourself with positive people, situation and avoid negativity.
तो ये गाइडेंस है आपका प्यारे दोस्तों. एंड लेट मी पुल वन एफर्मेशन कार्ड फॉर यू. फॉर दिस वीक. और आपका एफर्मेशन क्या है, चलिए देखते हैं क्या आता है. Personal growth. As I move towards greater consciousness, yes. आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए. Should I hold back? Should I give? Choose to give. This will bring balance in your life. As I move towards greater consciousness, यहाँ पे आप decision making कर रहे हो ना, confused हो. Choose greater consciousness. Choose the higher road. Choose the personal growth. I feel thought. As I move towards greater consciousness, I feel old thoughts and habits fall away. Yes, जो old habits है हमारा, that will fall away when we initiate this new energy of movement and mobility. Like training wheels on a bike, they helped me get to where I am. But now that I can ride, I don't need those slow and crummy wheels. Except when I am making bike analogies. तो जो कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट के लिए ठीक थी बट अब ठीक नहीं है, अब हमें उसे उस थोड़ा से पैटर्न में ना चेंज लाना है. और वो चेंज कौन सा वो क्या चेंज है, वो पैटर्न क्या पैटर्न का चेंज है वो. स्टार्ट गिविंग टू अदर्स विद ग्रैटिट्यूड. एक्सेप्ट व्हाट इज डिनाइंग, माने कि ये सोचना कि इस चीज को तो इस पे तो टाइम डाल के एफर्ट डाल के कोई फायदा नहीं है. नो, एक्सेप्ट इट. This will become balance. So that was the guidance coming for all the pile number 1. Thanks for watching and I will see you again. Take care. Bye for now, guys. Hello pile number 2. चलिए देखते हैं आने वाला वीक मैसेज आपके लिए क्या है. और आपके लिए आई है स्पिग स्पिरिट और ये बोल रही है यूज योर माइंड वाइजली. यानी कि आने वाले वीक में आपको आपके दिमाग का सही यूज करने के लिए बोला जा रहा है. हाउ अबाउट गेटिंग सम इंटरेस्टिंग गाइडेंस फ्रॉम द गाइड बुक. 47 नंबर का कार्ड आपके लिए पिग स्पिरिट आके क्या बता रही है. पाइल नंबर 1 में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैसेज मिला है और हम अब देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. Use your mind wisely, all right. Pig spirit appears to remind you of the right use of intelligence, a gift we all have that is meant to be used with love, compassion and discernment. यानी कि हमको दिमाग को बहुत ही अच्छे से यूज करना है, कंपैशन के साथ भी यूज करना है, लव के साथ भी यूज करना है और अच्छे से एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग भी करनी है. यानी कि सोच समझ के भी करना है, पूरा इमोशंस में नहीं बहना है. Intelligence means recognizing the value of intuition partnered with smarts and common sense. यानी कि काफी एक बोलते हैं कि इंट्यूशन को भी सुनो, थोड़ा इंटेलिजेंट भी रहो, थिंक ऑन द फीट भी करो, कॉमन सेंस भी लगाओ. इस सारी चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा इस वीक, विच लीड्स टू इंटेलिजेंट सोल्यूशंस. जब आप इस तरह की अपने दिमाग को इस तरह से यूज करोगे, यानी कि बस एक ही डायरेक्शन में नहीं यूज करेंगे, दिमाग भी लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, थोड़ा सा क्विक थिंकिंग भी करेंगे, तो आप एक अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे अपने सिचुएशन के लिए, या फिर प्रॉब्लम्स हैं अगर तो प्रॉब्लम्स के लिए. व्हेन पिग स्पिरिट अपीयर्स यू आर कॉल्ड टू रिस्पेक्ट योर एनालिटिकल माइंड एंड यूज इट फॉर द हाईएस्ट गुड. यानी कि एनालिटिकल माइंड का मतलब ही होता है एनालिसिस करना, यानी कि प्रॉन्स एंड कॉन्स को वे करना, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, थोड़ा सा एनालिटिक्स करनी है हमको. Recognizing all the facts must be considered even when they do not fit what you know already. यानी कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है और आपका पहले से कुछ है आइडिया है, तो फिर सी एनालिटिकल माइंड का मतलब ही है कि यू हैव टू चेक ऑल द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, फिर से एक बार रीचेक करना. तो थोड़ा सा सावधानी से ये चीज करना पड़ेगा आपको. स्पिरिट blesses us with wisdom when we allow pig spirit to nudge us into open-minded, thoughtful dialogues
whether with others or internally as we mull over our ideas and what we have come to understand. You are intelligent and capable of clear-minded thinking, shaped by wisdom you have accumulated and the intuition that will tell you when you have more learning to do, because not all facts are in. Now it is time that your decision making power are reliable, for you are in alignment with the spirit of intelligence. ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमको बहुत ही एनालिटिकल वे में डिसीजन मेकिंग करनी है. अगर हमको कुछ पता है तो भी, अगर कुछ पेपर्स स्पेशली अगर आपको साइन वाइन करना है तो फिर से एक बार हर चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को, डिटेल्स को साइन करने के पहले हर चीज पे सब, स्पेशली विद थिंग्स रिलेटेड विद पेपर वर्क, इफ यू आर डूइंग समथिंग दिस वीक, be careful, be a little careful, double check the emails also if you are sending it, because yes, it is time to be analytical. और yes, wait for all the information. अगर आपको लगता है कि, क्योंकि अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है एंड यू फील दैट कि इन द कमिंग वीक दैट you need more information to make the decision, then trust your intuition that yes, you need more information before you make decision. तो यही फायदा हुआ आपको टैरो गाइडेंस देखने का. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम? दिस वीक यू हैव टू यूज योर माइंड वाइजली. अगर वाइजली यूज करते हो तो यस, थिंग्स विल बी मोर स्मूथ फॉर यू. अब चलिए देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं. पाइल नंबर 2, यस, पाइल नंबर 2 को पता चल गया है कि उनको दिमाग अपना अच्छे से यूज करना है, अच्छे से एनालिटिक्स के साथ, हर डेटा के साथ इंफॉर्मेशन रख के कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, और क्या सिचुएशन आ सकते हैं उनके लाइफ में इस वीक, ये भी हम जानने की कोशिश. एम्परर, आई थिंक किंग ऑफ सोर्ड, यस, किंग ऑफ सोर्ड इज द एनालिटिकल माइंड. किंग ऑफ सोर्ड के अवतार में आपको आना है. टेकिंग वाइज डिसीजन, पुटिंग गुड यूज टू ऑफ योर माइंड, कॉमन सेंस भी लगाना है, इंट्यूशन भी लगाना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिसीजन मेकिंग करनी है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है. इंपॉर्टेंट पेपर वर्क साइन कर रहे हो, डबल चेक करिए, मेल्स को भी डबल चेक करिए, है ना, ये सारी चीजें देखना होगा. चलो ठीक है. गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2. Page of Sword, again it's a mind का कार्ड. Swords are about mind, thought process. यहाँ पे आप कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इसीलिए शायद बोला जा रहा है. हम देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है. बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं. वो 3 of Sword है यहाँ पे. तो यू आर हर्टिंग ऑन समथिंग, और शायद इसीलिए आप एक छलांग लगाने की सोच रहे हो ना, कुछ नई जर्नी स्टार्ट करने की, कुछ नया स्टार्ट करने वाली एनर्जी है, ऐसा देखो. इसीलिए शायद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोच समझ के कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है. और अगर आपको पता है, अगर इफ यू फेल्ट ड्रॉन टू पाइल नंबर 1, you can actually get more insight also there as to on what basis should you decide if you felt drawn to pile number 1. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बेसिकली किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, कुछ रस्सा कसी हो रही है, कुछ टग ऑफ वॉर हो रहा है, और वो चीज आपको बहुत परेशान कर रही है डेफिनेटली. और आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के, ये जगह को छोड़ के आप एक नया प्लंज लेंगे. यू विल मूव आउट, यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू. ये फूल की जर्नी आप लेना चाहते हैं. पर यहीं पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, यहां से छलांग लगाने की जो डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा. अगर मान लो कि हम यहाँ के लोगों से परेशान होकर हम छलांग लगा लेते हैं, तो आगे भी हम 3 of Cups के साथ हमें उसी तरह के लोग आगे भी तो मिल सकते हैं ना. तो हमें यहीं पे रह के इन लोगों के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल रेल में जाएं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएं, डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो ये सारे लोग हमारे मिरर इमेज तो ही हैं, और हम इनसे भाग के कब तक भाग सकते हैं. तो ये छलांग लगाने के पहले हमें बोला जा रहा है कि हमें वाइजली सोचने के लिए बोला जा रहा है. ऑल राइट. यहाँ पे देखो पेज ऑफ सोर्ड है. पेज ऑफ सोर्ड जिस तरह से झूले पे बैठ के सर ऊपर किए हुए
कुछ सोच रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो लाइक मेकिंग अ डिसीजन, लाइक वो अपने दिमाग पे असर देखो वही है, पेज भी है सोर्ड भी है। सोर्ड आपका हो गया थॉट प्रोसेस, पर पेज का थॉट प्रोसेस है ये, यानी कि एक छोटा बच्चा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ 20s के आसपास का कोई है जो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंटली कौन सी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है? एक नई चीज स्टार्ट करने की डिसीजन ले रहा है, किसी चीज से छलांग मार के दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन हो रहा है, बट ये पेज है, पेज इज पेज, they are immature, शायद उनके पास अभी उतना नॉलेज नहीं है, और rather yes that is what it is, they are not still king of sword, they are page of sword। उनके पास इतना इंफॉर्मेशन मैच्योरिटी नहीं है कि वो सही डिसीजंस ले पाए। तो क्या आप सिचुएशन को देख के डिसीजन ले रहे हो, जंप मार रहे हो, या फिर आप हाईएस्ट गुड, क्योंकि देखो अगर किंग होता है यहाँ पे ना, तो वो इन सारी, क्योंकि ये बच्चा भी है तो थोड़ा विचलित हो रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और ये भाग जाना चाहता है, छलांग लगाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आगे भी हमें 3 ऑफ कप इन रिवर्स की गॉसिपी एनर्जी मिल रही है, तो हम कब तक भागेंगे? हम किस पर्पस से भाग रहे हैं वो देखना जरूरी है। ये छलांग जो हमने लगा रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं या फिर हम किसी चीज से भाग रहे हैं? अगर हम रिस्क ले रहे हैं, वी आर गोइंग ग्रेट, तब तो अच्छा है। लेकिन हम किसी चीज से भाग रहे हैं, देन इट डजंट सर्व अस, बिकॉज ये जिस चीज से हम भाग रहे हैं वो हमें आगे भी मिल सकता है, अगले मोड़ पे भी मिल सकता है। तो ये बच्चा है, पेज ऑफ सोर्ड है, नहीं समझ पा रहा है चीजों को, इसीलिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये शायद गलती कर सकता है पेज ऑफ सोर्ड अपने डिसीजन लेने में, गलत जगह पे छलांग लगाने में, गलत समय पे छलांग लगाने में, क्योंकि ये हर्ट है तो ये छलांग लगा भी सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग इस वीक आप मत लीजिएगा, सोच समझ के आप अच्छे से डिसीजन लीजिएगा, है ना। मे बी यू आर इन द बेस्ट प्लेस वेर यू आर, तो उस तरह की चीजें आ रही हैं। बेसिकली हमको सोच समझ के ही डिसीजन लेना है इस वीक, यही एक लाउड मैसेज है हम सबके लिए। यस, हम किसी चीज, कोई चीज हमें हर्ट डेफिनेटली कर रही है, और वहां पे देखना होगा। चलो हम एक कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। चलो ये क्या है? Engage higher reason. Yes, how beautiful is this message. जो भी बोले, हमने वो बात की ना कि हम जो यहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन हम दिमाग से ही लेते हैं ना, तो हायर रीजन होना चाहिए। हम यहाँ से हम इस सिचुएशन से भागने के लिए यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं, या फिर हम सच में नया चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम किसी चीज से भागने के लिए, ये हमारा रीजन है भागने का, इस जगह से नया चीज स्टार्ट करने का, तो वो चैलेंज तो हमको आगे में भी फेस करना पड़ सकता है ना। तो इज इट बेटर कि हम यहाँ पे रह के ही इससे फाइट करके अपने स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रांग करें? इसीलिए जो भी आप डिसीजन मेकिंग करो ना, वाइज डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, हायर रीजन होना चाहिए। इंगेज हायर रीजन होना चाहिए, क्वालिटी रीजंस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। इसीलिए वाइज थिंकिंग बोला जा रहा है आपको, और यहाँ पे आपको प्लानिंग के लिए भी बोला जा रहा है। मेक अ प्लान, है ना, प्लान बनाइए। कहने का मतलब है जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने में टाइम लगता है, एनालिटिकल प्लानिंग करने में एनालिटिक्स भी लगती है। प्लान करना है, ये मुझे अचीव करना है, अच्छा ठीक है, क्या फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, कब तक करना है, कैसे कर सकता है, तो प्लानिंग की जरूरत है। तो वो भी चीज है। Keep your commitment. Don't run away from it, guys. Don't run away from your commitment, right? Don't run away from your commitment, giving some, hiding your fears. Higher reason होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे छलांग लगा रहे हो या आप किसी चीज से भाग रहे हो, don't run away. Keep your commitments, because you don't know आगे आपको कौन मिलेगा, है ना। Beautiful message indeed, coming for all the pile number 2. अब जो भी हो, जहां पे भी हो, डोंट गिव अप, फाइट फॉर इट। आई नो यू आर लाइक हर्ट विथ ऑल द टसल्स अराउंड, कॉम्पिटिशन अराउंड, द कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बट यूनिवर्स बोल रही है यू डोंट कंट्रोल, सी सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लिटरली शायद आप उनको कंट्रोल करना चाह रहे होंगे, बट आपको शायद ये लग रहा है कि ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं।
देखो दूसरा आदमी क्या करता है, इस पे आपका कोई अख्तियार है ही नहीं, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आपका जो योर रूल्स आर फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट चेंज अदर्स। तो आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं। बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन sabotage a relationship to move more effectively, achieve the goal, back off, regroup and give the situation some breathing time. Quite possibly कुछ लोग रिलेशनशिप से भाग रहे हैं कि ये तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके हिसाब से बिहेव करे, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। दिस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, क्योंकि वो अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से ही काम करेगा और आप अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से काम करिए। राइट, ऑल राइट। Yeah. Control your desire, make a plan, keep your commitments, don't run away. Surround yourself with positive energy, situation and negativity है, positivity है, and avoid negativity है। आपका कार्ड है फेथ का। अगर मैं ये हटा दूं तो हैव फेथ दैट थिंग्स विल गेट बेटर, ऑनर योर कमिटमेंट, इट विल बी गेट बेटर। Your prayers are manifesting, remain positive and follow your guidance. So maybe this is not the week to make major decisions. Hang on there. Have faith. यहाँ पे क्या है कि आपने छलांग मार दी है, यहाँ पे आपको लगा कुछ नहीं होगा, आपने छलांग मार दी है। Have faith. So this is the guidance coming for all the pile number. Quite possibly not the time to make decision. ठीक है? All right. अब मैं आपके लिए एक easy breezy message लूंगी। यहाँ से आपके लिए लेंगे हम एक easy breezy message for this week. Follow your heart. I am always rewarded when I follow my heart. I trust that the GPS in my heart knows all the best routes. And when it seems like it's taking too long to get where I want, I know that's because there's some cool, weird stuff to see along the way. Yeah, interesting. I am always rewarded when I follow my heart. यहाँ पे आप अपने हार्ट को फॉलो करके, यहाँ पे भी आप किसी चीज़ को सोच रहे हो ना करने का, यहाँ पे भी आप अपने हार्ट, यहाँ पे आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हो किसी चीज़ को करने का, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट। यहाँ पे आप छलांग लगाते हुए दिख रहे हो, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स से आपकी मुलाकात हो रही है। I trust that the GPS in my heart knows all the best routes. And when it seems like it is taking too long, exactly आप यहाँ पे कंटेम्पलेट कर रहे हो आगे मूव करने का, लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे हो, टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? हैव फेथ करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? सोच समझ के एक्शन करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? कीप योर कमिटमेंट्स करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अभी बाकी हैं। So hang on there. And when it seems it is taking way too long to get where I want, I know that because there's some cool stuffs to open up. So think wisely, listen to your heart, but importantly, take all the time you need to make, some major decisions of your life. This week, always make your decisions for the higher reason, not for lower reason. So that was the guidance coming for all the pile number 2. I hope that this helps you guys. Thanks for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.
हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका आने वाला ये वीक कैसा होने वाला है। और आपने चूज किया है पैंथर स्पिरिट को, रिक्लेम योर पावर। नाउ व्हाट अ पावरफुल मैसेज टू गेट एंड अ पावरफुल एनिमल स्पिरिट टू कम। तो चलिए देखते हैं, हम आपका मैसेज पढ़ेंगे। इट टेक्स करेज टू फेस चैलेंजेस एंड राइट नाउ Panther Spirit is here to say that you are braver than you think. Now is the time to take a risk and step into a different aspect of your being. You know, stop being so small and withdrawing yourself. Step up your game like a panther spirit. Step into a different part of your being. What a beautiful message to get. Act as you have always dreamed. You might have the courage to act. Love fearlessly and fully and expect to feel the adrenaline rush. Wow. Adrenaline rush को feel करने के लिए बोला। See the panthers how they run. As you are initiated into a new, braver, bolder self. What a message to get for this week. Panther Spirit says the time for dreaming about what you want to do is giving way to that first courageous act towards reclaiming your power. Your new identity may feel strange at first, but you have what it takes and your soul wants this. Be bold. See, you have what it takes and your soul is what it takes. So don't stop your soul from, being the panther that it is. Be bold. Wow. चलिए देखते हैं. This week you have to be bold. This week you have to step into your power. This week you have to say डर के आगे जीत है and be courageous enough to do it. Feel the fear and do it any which ways. ये आपका मैसेज आ रहा है इस वीक। तो आप इस वीक करने क्या वाले हैं और यूनिवर्स आपके लिए कौन सी एनर्जी ला रही है, क्या कोई चैलेंज ला रही है, सो दैट यू कैन टेक इट ऑन विद योर पैंथर स्पिरिट। आई एम टोटली एक्साइटेड टू सी योर एनर्जी गाइस। लेट्स सी फाइल नंबर 3 के लिए कौन सी एनर्जी आने वाली है इस वीक। चलिए देखते हैं। यस, दिस इज वाओ। सी, बीटन डाउन बट नॉट given up. You are almost there. 9 of Wands है। King of Sword हो आप। Knight of Sword and the Sun card. Back of the deck में King of Pentacles है। हो क्या रहा है यहाँ पे? तीन archetypes already we are seeing here. We are seeing the King of Sword, we are seeing the Knight of Sword, and we are seeing the King of Pentacles also. एक तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है, and you are being told कि go back, fight. Excuse me. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई King of Sword है, ठीक है। यहाँ पे आप Knight of Sword हो, you are going back. यहाँ पे दो लोगों के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। आपको बोला जा रहा है कि नो, डोंट रन अवे, गो बैक, क्लेम योर पावर, टॉक इट आउट। क्यों? क्योंकि ये भी सोड है, ये भी सोड है, ये दोनों में बातचीत करनी ज़रूरी है शायद। सो मे बी देर आर 2 parties. One party is like they are the master of the game, they are very good with talking and all, and you are like, I don't want to talk to them, they will just manipulate me. They are very smart with the words and all, and you don't want to fight, you want to just go away, and you're like, no, hang on there, talk it out, you can do it. Even though the other party is king and you are still knight, आपसे काफ़ी बड़े हैं, सीनियर है, ज़्यादा विजडम है, ज़्यादा नॉलेज है, अप द हायरार्की है, बट स्टिल डोंट लीव योर स्टैंड, डोंट लीव योर ग्राउंड, यू गो एंड टॉक टू इट। इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। और अगर यहाँ पे जिस तरह की कम्युनिकेशन आप करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि सन शाइन करता है कि नहीं सिचुएशन पे। अगर आप करेज दिखाएंगे तो ये सन शाइन करेगा, मगर आप करेज नहीं दिखाओगे, ऐसे ही भाग जाते हो, तो सन मुझे नहीं लग रहा है कि शाइन कर लेगा।
आई मीन कहने का मतलब है कि शो द करेज. इफ यू शो द करेज थिंग्स विल हैपन. या इस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये पैंथर स्पिरिट नाइट ऑफ सोर्ड के ऊपर आया है. यू नीड टू टैप इनटू दिस करेज to face situation. For things to become bright. Give me a second. Let's take these cards and see some clarifiers here because we have some code cards यहाँ पे. तो चलो हम देखते हैं कि किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द सन कार्ड. बेसिकली अगर देखो तो वी हैव गॉट 2 कोड कार्ड्स एंड वी हैव गॉट 1 मेजर आर्काना एंड हियर आल्सो यहाँ पे है क्या कोड कार्ड ही है. तो 3 कोड कार्ड्स है, एक पैंथर आर्च टाइप है, लाइक 4 आर्च टाइप्स हैं. तो ये हो क्या रहा है? Dear angels, can we please get a little clarifier? We thank you so much for this. Thank you so very much. 5 of wands before है. Yes, you are protected. Lovers से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही है. यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है किसी एक कोई है जो काफी रिच एंड वेल्दी है एंड आप उतने रिच एंड वेल्दी नहीं हो शायद, मनी की समथिंग लाइक दैट. कोई एक है रिच और कोई एक नहीं है रिच, और वहां पे ही कुछ बात चल रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं. यहाँ पे देखो कमोशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, होने वाला है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि 5 ऑफ वॉन्स के पहले का कार्ड है यहाँ पे और नाइट ऑफ सोर्ड किंग ऑफ सोर्ड के पीछे में है. यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के सिचुएशंस किंग ऑफ सोर्ड बना के रखा है या फिर उसने छुपा के रखा है. लाइक जैसा मैंने बोला ना कि आप यहाँ से बात करोगे तो किंग ऑफ सोर्ड इज वेरी गुड विथ वर्ड्स एंड स्ट्रैटेजीज ना, वो आपको किसी चीज में फंसा सकता है. और फंसा क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड उल्टा नहीं है तो मैं उसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बट ही इज वेरी स्मार्ट. यू कैन गेट इन हिज वर्ड्स, ही कैन कन्विंस यू फॉर वॉट ही बिलीव्स इन. तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्स के साथ कुछ तो फील्ड तैयार है जिसपे आप ये ही कैन गेट यू ट्रैप्ड. बट यस, यही बोला जा रहा है आपको. द हायरोफेंट एंड बिफोर टैरो का हायरोफेंट आपकी बैकिंग आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि फर्स्ट चीज तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप करेज दिखाएंगे तो यूनिवर्स विल ब्लेस यू. यूनिवर्स हैज योर बैक क्योंकि हायरोफेंट इज अ स्पिरिचुअल कार्ड, कनेक्शन विद द डिवाइन. सो इफ यू शो करेज एंड यू डोंट रन अवे, यू गो एंड you stand for what you believe in, so you will get what you want. You have the backing definitely with this Hierophant. और ये लवर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली दिस रिलेट्स विथ कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप से, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें होंगी जहाँ पे दो फैमिली में कुछ इस तरह की बातचीत हो रही है, लाइक हीटेड डिस्कशंस एंड ऑल दैट. नॉट रियली हीटेड डिस्कशन बट समथिंग रिलेटेड विथ लवर्स का कार्ड, शादी, समथिंग लाइक दैट. चलो बाबा, यही सब चीज़ें हैं. चलिए अब हम कार्ड्स ले लेते हैं. लेट्स सी. Panther spirit is only telling you to stand for what you feel is right. ये क्या है? Claim your art. Yes, stand for what you feel is right. Claim your art. Lovers का कार्ड है, the artistic card, creative card. Claim what is yours. Stand for it at least. Reassess.
I don't think it is reassess. It was ऐसे था शायद. Or maybe yes, why not? Reassess the situation. Instead of running away, and this person seeing you, you leave the ground and going, reassess your decision making. Reassess your decision making and claim what is yours. Claim your art. Reassess. Don't leave your art. Reassess. Claim your art. Quite possibly आप छोड़ के चीज़ों को जा रहे हैं. Reassess your running away. Claim it instead. तो ये हमको पता चल रहा है